میں نے چودھری صاحب سے ملاقات کر کے انہیں اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت میں جا کر براہ راست ریڈیو ٹرانسمیٹر پر چودھری صاحب سے رابطہ قائم کرنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ بھارت میں پاکستانی سفارت خانہ کو ملوث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر یہ طے پایا کہ میں بھارت میں جہاں کہیں بھی رہوں گا، چودھری صاحب کو کسی نہ کسی طرح فرضی نام سے خط لکھ کر بتا دیا کروں گا، اور اگر انہیں کوئی ضروری پیغام مجھے پہنچانا ہوا تو وہ اپنے کسی خاص ایجنٹ کو میرے پاس بھیج دیا کریں گے۔ میں نے اپنا ایک فرضی نام ان کی ڈائری پر نوٹ کروایا۔ آخر وہ رات آ گئی جب مجھے سرحد پار کر کے بھارت میں داخل ہونا تھا۔ رات کے ٹھیک 2:15 بجے مجھے پاکستانی انٹیلیجنس والوں نے اپنی سرحد عبور کرا دی۔ میں ایک خاص مقام سے آگے بڑھ گیا اور اپنے کپڑوں پر مٹی وغیرہ لگا کر ایسا حلیہ بنا لیا گویا بڑی مشکل سے پاکستانی سرحد پار کر کے آ رہا ہوں۔ یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بالا تھا، نہ تو مجھے پاکستانی بارڈر کی طرف سے گولی چلنے کا امکان تھا۔ میرے بارے میں وہاں ایک خاص مقام پر پہلے سے اطلاع کر دی گئی تھی۔ مجھے اگر تشویش تھی تو صرف یہ تھی کہ کہیں مجھے جال میں تو نہیں پھنسایا جا رہا۔ مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے میرے کپڑے اتروا کر 1 سیکنڈ کا معائنہ ہی کافی تھا۔ میرا مسلمان ثابت ہو جانا بھارتی انٹیلیجنس کے لیے دھماکے سے کم نہ ہوتا۔ دل میں یہی تشویش اور ذہن میں یہی کھٹک لیے میں اندھیری رات میں مخصوص بھارتی چوکی کے قریب پہنچ گیا۔ مجھ پر ایک دم سے سرچ لائٹ پھینکی گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر واہے گرو کا خالصہ، واہے گرو کی فتح کا ہلکا سا نعرہ لگایا۔ یہی میرا پاس ورڈ تھا۔ مورچے سے ایک سکھ فوجی نکل کر میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے مورچے میں چلا گیا۔ یہاں سے مجھے ایک جیپ میں امرتسر روانہ کر دیا گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، لیکن اب بھی خطرہ پوری طرح سے نہیں ٹلا تھا۔ امرتسر میں کرنل گرمیت سنگھ پر انتظار کر رہا تھا۔ وہ میرے لیے بلائے ناگہانی ثابت ہو سکتا تھا۔ جیپ میں میرے ساتھ ملٹری سیکرٹ سروس کا ایک سادہ لباس والا آدمی بھی تھا، جبکہ جیپ ایک فوجی چلا رہا تھا۔ امرتسر ریلوے اسٹیشن کے سامنے والے ویشنو ہوٹل میں میرے لیے کمرہ بک تھا۔ میرا لباس وہی شلوار قمیض تھا، چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی اور ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ ہوٹل والا مجھے مسلمان سمجھا، مگر فوجی جیپ سے اترتے دیکھ کر خاموش رہا۔ سادہ لباس والا ہوٹل میں آ کر مجھ سے کہنے لگا، صبح 10 بجے تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور دل میں طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے لے کر پلنگ پر چت لیٹ کر سگریٹ پینے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ جلدی سے اٹھ کر غسل کیا، ناشتہ منگوایا۔ پورے 10 بجے ہوٹل کے سامنے فوجی جیپ آ کر رک گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات والا آدمی جیپ سے اتر کر ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری جیپ امرتسر کے قلعے کی طرف جا رہی تھی۔ بریف کیس میرے ساتھ تھا، اس میں ریڈیو ٹرانسمیٹر اور کوڈ بک تھی۔ میں نے زہریلا سگار بھی شلوار کی خاص جیب میں رکھ لیا تھا۔ V2 گولیوں کا پیکٹ البتہ ساتھ لے جانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں اطلاع دے چکا تھا کہ پاکستانی سیاستدانوں کو کھلا چکا ہوں۔ ان گولیوں کا پیکٹ میں نے ریلوے اسٹیشن والے ہوٹل کے کمرے کے باہر برآمدے کے ایک گملے میں چھپا دیا تھا۔ جوں جوں جیپ قلعے کے قریب ہوتی جا رہی تھی، میرے دل میں اندیشے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا کہ انڈین انٹیلیجنس میں میرا ریکارڈ بے داغ ہے، اور جس مکتی باہنی جاسوس کو ہلاک کر کے میں نے اس کا بیس بدلا ہے، وہ انڈین سیکرٹ سروس کی گڈ بکس میں ہے۔ اسی کشمکش میں جیپ قلعے کے بڑے گیٹ میں داخل ہو گئی، اور جب ہماری جیپ کرنل گرمیت سنگھ کے زیر زمین آفس کو جانے والے راستے کے دروازے پر آ کر رکی تو میرے اندر کافی حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ کرنل اپنے اسی پرانے آفس میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بڑی خندہ پیشانی سے ہاتھ ملایا۔ میرے اندیشے کسی حد تک دور ہو گئے۔ اس نے مشن کی کامیابی پر مجھے مبارکباد دی اور کہا، کرنل منی، مجھے اس بات پر حیرانی ہے کہ اگر ہمارے ایجنٹ پاکستان میں کہیں روپوش ہو گئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں قائم کیا۔
मास्टर अस्पाई के पास तो हाई पावर रेडियो ट्रांसमीटर हर वक्त मौजूद रहता है। हो सकता है पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। सीआईडी के आदमी मेरे पीछे भी लगे हुए थे। मैंने बड़े खतरनाक हालात में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया है, मैंने जवाब दिया। तजर्बाकार सिख कर्नल की चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। उसने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल मेज पर रख दी और कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाते हुए बोला, कर्नल मनी, हमारे एजेंट बड़े तजर्बाकार हैं और कई साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एकदम वो सारे के सारे कैसे पकड़े गए। कहीं किसी ने मुखबरी तो नहीं की। ये कहकर वो मुझे गहरी नजरों से तकने लगा। एक लम्हे के लिए मेरे हल्क में तल्ख ज़ायके की एक लकीर सी फैल गई। मैं समझ गया कि पांसा पलट रहा है, लेकिन मैंने चेहरे से जरा सी भी परेशानी का इजहार ना होने दिया। मेरे हाथ में तस्बीह थी। मेरा ब्रीफ केस मेज के नीचे पड़ा था। मैंने तस्बीह को लपेटते हुए कहा, मुखबरी कौन कर सकता है? अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो जरूर डबल एजेंट है, मगर इस किस्म का आदमी कम अज कम हमारे ग्रुप में कोई नहीं है। गुरमीत सिंह का बालों में छुपा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, बल्कि कुछ सोच रहा है। हालांकि मेरी तरफ टिकटिकी लगाए हुए था। अचानक उसने सवाल किया, कर्नल मनी, तुम अमृतसर के किस महल्ले में पैदा हुए थे? इस सवाल ने मुझे चौंकना कर दिया। अब कोई शुबा नहीं रहा था कि मेरा राज फाश हो चुका है। फिर भी मैंने अपने हवास कायम रखे। अपने स्मगलर दोस्त के यहाँ क़याम के दिनों में मैं अमृतसर के गली महलों से वाकिफ हो चुका था। मैंने कहा, मेरा जन्म नाहन सिंह की गली पांदिया में हुआ था। वो मेरे माता पिता के बारे में पूछने लगा। मैं उसे बताता चला गया और राय फरार इख्तियार करने के बारे में सोचने लगा। मेरे पास जहरीला सिगार मौजूद था, मगर मैं उसे सुलगा नहीं सकता था, क्योंकि उस सिगार की हलाकत खेजी कर्नल के इल्म में थी। कमरे का दरवाजा बंद था और कर्नल की बेल्ट में लगा हुआ रिवाल्वर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपना भरम रखने की खातिर एक बार हल्का सा एहतजाज करते हुए कहा कि वो मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों कर रहा है, जबकि उसके पास दिल्ली से मेरी फाइल पहुंच चुकी है जिसमें मेरा पूरा डाटा दर्ज है। वो मकारी से मुस्कुराया और कहने लगा, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर एक बात का अंतराज नहीं है। मैं उसका मुंह तकने लगा। वो कुर्सी से उठा और बोला, मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। बिजली की चमक बनकर यह ख्याल मेरे जहन में कूद गया कि वो मेरे जिस्मानी मुआयने के लिए मुझे दूसरे कमरे में ले जा रहा है। मैंने आखिरी बार एहतजाज किया कि मैं भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। वो मुझे यूं डिक्टेट नहीं कर सकता। उसने अपने कमरे के अकबी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कर्नल मनी, उस कमरे में जाकर तुम्हें अपना जिस्मानी मुआयना कराना होगा। मैंने मजीद ढटाई से काम लेते हुए कदरे तल्ख लहजे में कहा, आखिर ये क्या मजाक है? मैं हेडक्वार्टर से शिकायत करूंगा। वो मेरी तरफ झुककर बोला, मौलवी साहब, ये सब कुछ मैं हेडक्वार्टर के हुक्म ही से कर रहा हूँ। साइड रूम में तशरीफ लाइए। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं बड़बड़ाता हुआ उठा और साइड रूम में घुस गया। मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान चंद साहतें बाकी रह गई थीं। दूसरे कमरे में आते ही मैंने एक खूनखार और बेखौफ कमांडो की आंख से जायजा लिया। कर्नल किसी दूसरे अफीसर को फोन करने लगा। कमरा छोटा सा था। कमरे में लोहे की अलमारी खड़ी थी। वहां फिजा नीम रोशन थी। मुझे कर्नल के कदमों की चाप सुनाई दी। उसके ऑफिस से साइड रूम में 3 कदम का फासला था। मेरी या गुरमीत सिंह की मौत में भी सिर्फ 3 ही कदम का फासला था। 2 कदम, 1 कदम, फिर मेरी मौत कमरे में दाखिल होने ही वाली थी। लेकिन मौत की आगोश से अपनी जिंदगी छीनने के लिए मैं उस पर आखिरी और भरपूर हमला करना चाहता था। साइड रूम का कोई दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ नीले रंग का एक पर्दा लटक रहा था। मैं पर्दे के पहलू में दीवार के साथ लग गया। उस वक्त मेरी रग रग में बिजलियां कूद रही थीं। अंदेशे, वसवसे, सोच विचार, सब कुछ कूदती बिजलियों के इस तूफान में बह गया था। बस इतना याद था कि मैं बिजली हूं और मुझे एक शख्स पर मौत बनकर गिरना है। यह सब कुछ चंद सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मौत का ऑपरेशन कब शुरू हुआ, आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो तफसील याद नहीं आती।
नीले पर्दे के पीछे से मैंने वर्दी पोश सिख कर्नल को साइड रूम में दाखिल होते देखा, जिसके हाथ में पिस्तौल था। ये पिस्तौल मुझे उस वक्त नजर आया जब उस फौजी अफसर की गर्दन टूट चुकी थी और वो मेरे बाजू के आहनी शिकंजे में झूल गया था। मैंने कर्नल को रिवाल्वर के साथ फर्श पर लेटाया तो उसकी हरे रंग की पगड़ी एक तरफ टेढ़ी हो गई। उसके हाथ में जो रिवाल्वर था उसको लॉक लगा हुआ था। मैंने उसकी किसी शय को हाथ नहीं लगाया और साइड रूम से निकलकर उसके ऑफिस में आ गया। ऑफिस खाली था। मैंने अपने कांधों पर पड़े हुए रुमाल को दुरुस्त किया, ब्रीफ केस उठाया, जेब से तस्बीह निकालकर हाथ में थाम ली और चेक उठाकर बाहर निकल आया। गुरमीत सिंह की मौत से ज्यादा खतरनाक मरहला अब इस किले से बाहर निकलने का था। कदमों की जरा सी लग़ज़िश और जबान की हल्की सी लड़खड़ाहट मुझे मौत के जहन्नम में धकेलने के लिए काफी थी। दरवाजे पर एक सिख हवलदार बेल्ट से हल्की स्टेन गन लटकाए अटेंशन खड़ा था। उसने मुझे ऑफिस में दाखिल होते देखा था, चुनांचे जब मैं बाहर निकला तो उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। कर्नल ने 10-15 सेकंड के लिए किसी को फोन किया था और अंग्रेजी में आहिस्ता से कुछ कहा था, जिसमें कुछ उसकी आवाज हल्की होने और कुछ अपने ज़हनी खलफशार और जज्बाती हिजान के बायस नहीं सुन सका था। मुमकिन है उसने मेरे बारे में किले के किसी अफिसर को बता दिया हो और वो उसके ऑफिस की तरफ चला आ रहा हो। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं हर तरह से नॉर्मल नजर आने की कोशिश कर रहा था और उसमें काफी हद तक कामयाब भी था। तहखाने से निकला तो सीढ़ियों के बाहर भी पैरा था। ये सिपाही भी मुझे नीचे जाते देख चुके थे। उन्होंने भी मुझसे कोई बात न की। जूं जूं किले की डेवड़ी करीब आ रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। लगता कि अभी पीछे से स्टेन गन का एक ब्रेस्ट मारा जाएगा और गोलियां मेरा सीना छीनी करती हुई निकल जाएंगी। किले की बुलंदोबाला कदीम छत वाली देवड़ी आ गई और दरवाजे तक 20 कदम का फासला था, लेकिन ये फासला मुझे मीलों लंबा लग रहा था। 2 चाकू चौबंद सिपाही डबल मार्च करते हुए मेरे करीब से गुजर गए। किले का बड़ा दरवाजा खुला था। दोनों जानिब गोरखे फौजी स्टेन गन लिए पैरे पर खड़े थे। एक सिख फौजी दरवाजे के पास अंदर की जानिब एक कुर्सी पर बैठा हाथ में मग लिए चाय पी रहा था। खुदा जाने क्यों उसकी उकाबी निगाहें मुझे अपने ऊपर गड़ी हुई महसूस होने लगी। करीब से गुजरते हुए मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो उसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, लेकिन मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। वो मेरे करीब आकर पंजाबी में बोला, मौलवी साहब, मालीर कोटले में ड्यूटी लगी है। मैंने भी पंजाबी में जवाब दिया, हाँ सरदार जी, ड्यूटी लगी है, ड्यूटी जो करनी है चाहे जहां लग जाए। खुदा जाने उसने मुझे क्या समझकर ये जुमला कहा था। मुझे तो बस इतना मालूम था कि मलीर कोटला पंजाब की मगरबी सरहद पर एक ऐसी रियासत है जहां सन 47 के फसादात के दौरान एक भी मुसलमान शहीद नहीं हुआ था और जहां पंजाबी मुसलमान आज भी चैन से जिंदगी बसर कर रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।